Good morning. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Anand. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I think we are live. We can start. Yeah, okay. So, good afternoon, everyone. On behalf of Admissions Branch, University of Delhi, I welcome you all to this webinar on undergraduate admission 2023-24. As always, University of Delhi has taken a lead in creating awareness to the prospective candidates about admissions to its various undergraduate programs for the academic session 2023-24. For the same, the Bulletin of Information about various courses was launched in the month of February itself. And last week on 14th June, the Common Seat Allocation System portal was made live. So to enlighten more about the registration process, the admissions process, today in this webinar, we have the Dean Admissions from University of Delhi, Professor Hamid Gandhi. Ma'am, I welcome you on this webinar. We are also joined by the Joint Dean Admissions, Professor Amit Kunde. Sir, I also welcome you to this webinar. Hello. So in today's webinar, we'll elaborate more on the process of registration, that what are the precautions you should take while doing the registration on the University of Delhi portal, what documents need to be provided, and what will be the sequence for admissions thereafter. So with this, without taking much time, I will request the Dean Admissions to apprise you about the admissions. Over to you, ma'am. Good morning, good afternoon, everyone. And Professor Anand didn't introduce himself. He is also Deputy Dean with Admissions, and he is here to take all the various platforms. So as Professor Anand Sonkar said, this is the first webinar, in fact, actually the second webinar in the series of webinars that we have launched for admissions 23-24. The first webinar that we had done was in the month of February when the CUET was just launched. और अब आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने CUET का एग्जाम दे दिया होगा और अब हमने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, हाल ही में लॉन्च किया है अभी 14 तारीख को। तो आज हम आपको हमारा जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, जो प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। इसी श्रृंखला में हमारे और भी वेबिनार्स होंगे जिसके बारे में ये वेबिनार के एंडिंग में आपको बता देंगे। तो आज का जो वेबिनार है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि एक तो ये आपको अवगत कराने के लिए कि वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ पोर्टल व्हिच इज द CSAS पोर्टल, द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। सभी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कार्यक्रमों में, सभी कॉलेजेस में सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है, इस प्लेटफॉर्म पे जाइए, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिया हुआ है और यहाँ पर आप जाके अपना आवेदन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मात्र कुछ छोटी सी फीस देकर। तो आज का वेबिनार मैं मेरी टीम के साथ, एडमिशन ब्रांच की पूरी टीम, जिसमें मेरे साथ प्रोफेसर अमित कुंदीरी है जो जॉइंट डीन एडमिशन की, प्रोफेसर आनंद सोनकर जो डेप्यूटी डीन एडमिशन ब्रांच की, और मैं प्रोफेसर हमीद गांधी जो डीन एडमिशन है, आपको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। सो मैं अपना पावर पॉइंट शेयर करती हूँ। प्रोफेसर आनंद सर, एक बार आप देखिएगा कि मेरा स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है। ऑफिस एडमिशन मुझे आई हैव टू ओपन द स्क्रीन। Professor Gandhi, with your permission, I also want to say that during the webinar, if the prospective students have any query, they can write it in the chat box. At the end of the program, we'll take them. और आप फेसबुक से भी सर ले रहे हैं ना, ये पूरा प्रोग्राम जो है हमारा फेसबुक पे भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जो लोग मिस कर दें वो दोबारा इसमें देख सकते हैं। ये वेबसाइट पे हमारी यूट्यूब ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इस पे ये रहेगा। अगर आपने मिस कर दिया तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। मैं पावर पॉइंट सर ऑन करती हूँ। सर पावर पॉइंट विजिबल है? Yes, the PowerPoint is there. एक बार स्लाइड शेयरिंग भी करके देखिए। Just let me know if we can. Is the next slide visible now? Yes, the slide is visible. Perfect. Okay, wonderful. So, the University of Delhi से हमने अभी अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है
उसे लॉन्च किया है और ये एक सिंगल विंडो होगी जिससे आप अपना एडमिशन कर सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी प्रोग्राम और सभी कॉलेजेस में। इस सब का आधार जो है वो आपके सिर्फ सीयूईटी के मार्क्स पर ही होगा। तो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी सीयूईटी देना चाहिए, देना होगा बता देते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पे वेबसाइट दी जा रही है, ये है हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक for the common seat allocation system ugadmission.uod.ac.in। इस लिंक पे जब आप जाएंगे तो आपका सीसास का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अभी आपको उसके पूरे इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी बता देंगे। दो हमारे अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, एक है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड और एक है हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इन दो प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने अपने अंडर ग्रेजुएट के एडमिशंस का आगाज कर दिया है। NCWeb की वेबसाइट ncwebadmission.uod.ac.in और SOL की soladmission.samarth.ac.in। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सीयूईटी का होना, सीयूईटी में आना अनिवार्य नहीं है। इन दोनों में आप, इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में आप अपने क्लास 12 के जो मेरिट बेस्ड जो आपके मार्क्स आए थे उनके आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं। NCWeb जो है हमारा प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ वुमेन या गर्ल कैंडिडेट्स के लिए है जो दिल्ली NCR रीजन की है। और जो SOL है ये हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये कॉरेस्पॉन्डेंस मोड में चलता है। यहाँ पर 8 प्रोग्राम चलते हैं जिनमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में बातचीत करने के लिए हमने इन दोनों को भी एक्सपर्ट्स को बुलाया। हमारी अगली एपिसोड जो होगा वेबिनार में उसमें हम NCWeb और SOL को भी कवर करेंगे। तो जो बच्चे NCWeb या SOL के थ्रू एडमिशन लेने में इच्छुक हैं आप वेट करिए, बहुत जल्द हम NCWeb के ऊपर भी एक वेबिनार करेंगे और SOL के ऊपर भी एक वेबिनार करेंगे। आज का जो हमारा वेबिनार है वो सिर्फ सीयूईटी और सीसास पर आधारित है। सीयूईटी या सीसास के बाद जो सीसास का आप पोर्टल खोलेंगे इनसे आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के 78 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिनमें से एक जो हमारा BA प्रोग्राम है उसमें खुद 198 कॉम्बिनेशंस हैं और ये 68 कॉलेजेस में ऑफर होते हैं ये प्रोग्राम्स। तकरीबन 71,000 अंडर ग्रेजुएट की जो सीट्स हैं इन सभी प्रोग्राम 78 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन 68 कॉलेजेस and 198 BA program combinations again offered in 68 colleges to approximately 71,000 UG seats will be done only through the common seat allocation system platform। इसके अंदर जो हमारे विभिन्न प्रोग्राम है वो है हमारे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BTech के कोर्सेज, BFA और BLEd और भी तमाम कोर्सेज हैं। ये सब का एक ही प्लेटफॉर्म है वो है ये। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं क्योंकि BTech से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। ये सिर्फ एक BTech प्रोग्राम है जो सीसास के थ्रू कवर होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल से 3 अन्य BTech के कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं जो BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इनके जो एडमिशन है वो JEE के थ्रू होगा। सिर्फ इन 3 प्रोग्राम्स का एडमिशन जो है वो JEE के थ्रू होगा। उसका प्लेटफॉर्म अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आप वेबसाइट पे बने रहिएगा फॉर ऑल अपडेट्स। ये जो यहाँ एक मेंशन है वो सिर्फ एक BTech प्रोग्राम है जो हमारे क्लस्टर इनोवेटिव सेंटर में ऑफर किया जाता है जिसको हम CIC कहते हैं। बाकी सभी प्रोग्राम जो आपके सामने दिख रहे हैं सबका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सीसास के आधार पर है। सीसास में जब आप जाएंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और तब आपका एक नॉन रिफंडेबल फीस आपको देनी होगी। जो रजिस्ट्रेशन फीस भी जिसे हम कह रहे हैं ये एक 1 टाइम पेमेंट है जिसमें जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS जो छात्र हैं इन्हें मात्र 250 रुपए देनी होगी और जो हमारे SC ST या PWD को बिलोंग करते हैं उन्हें 100 रुपए देने होंगे एज 1 टाइम नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी फॉर रजिस्टरिंग ऑन सीसास। अगर कुछ विद्यार्थी अपना ECA और स्पोर्ट्स सुपरन्यूमरी कोटा में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें 100 रुपए प्रत्येक कोटा के लिए देना पड़ेगा। यानी अगर आप सिर्फ ECA में एडमिशन चाहते हैं और आप OBC के हैं तो आपको 350 रुपए देने होंगे। मान लीजिए आप सुपरन्यूमरी और ECA दोनों में एडमिशन चाहते हैं
और आप SC कैटेगरी के तो आपको 400 रुपए देने होंगे, 100 रुपए आपकी 300 देने होंगे SC के 100 रुपए, 100 रुपए ECA और 100 रुपए स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। ये अनिवार्य है, अगर आप मिस कर देंगे पैसे देना तो आपका रजिस्ट्रेशन उस कैटेगरी में या उस कोटा में नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अब आप सीसस पे जब लॉन्च करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स मेरे मित्र प्रोफेसर अमित कुंडी डिटेल में बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ग्लिम्पसेस दे रही हूँ कि जो पूरा फॉर्मेट है वो कैसे है। आप जब फॉर्मेट इस पे जाएंगे तो आपसे सबसे पहले वो CUET का एप्लीकेशन नंबर मांगेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपका वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन CUET में यूज किया था। अगर वो नंबर मेल कर जाएगा तो आपका पूरा फॉर्म खुलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके अपना CUET का नंबर डालेगा और थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे कर लीजिएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर ये कुछ 6 से 7 टैब्स खुल जाएंगे, जैसे कि पर्सनल सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, ECA स्पोर्ट्स का सेक्शन, फिर एक डॉक्यूमेंट अपलोड का, फिर प्रीव्यू का और फाइनली पेमेंट गेट। इन सभी स्टेजेस को आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा और अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। जब आप पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे और अगर आपका CUET का नंबर मेल खा जाएगा तो आपके नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स ऑटो इंटीग्रेट हो जाएंगे CUET से, यानी कि यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, योर प्राइमरी email ID and your primary phone number which you had entered at the time of CUET। CUET में जो आपने अपना नेम, फोन नंबर दिया था वो यहाँ नॉन एडिटेबल होगा। सभी अपडेट्स आपको उन्हीं ईमेल और फोन नंबर्स पे दिए जाएंगे और इसकी पूरी जानकारी अब प्रोफेसर कुलदीप प्रोवाइड करेंगे। आप इसके बाद एकेडमिक सेशन पे जाएंगे जहां पर आप अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को इनपुट करेंगे। कुछ एडवाइजेस मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप अपना फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, यानी कि आपकी कैटेगरी, कास्ट, जेंडर, ये ध्यान से चेक करा लीजिए। कोई अगर आपके साथ, आपके माता पिता आपके साथ दे सकते हैं तो उन्हें भी एक बार दिखा लीजिए, क्योंकि अगर आप ये फील्ड एक बार एंटर कर देंगे तो ये चेंज नहीं होंगी। इसलिए सबमिट करने से पहले अपनी पर्सनल डिटेल, बैंक की डिटेल्स बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए। कभी भी अगर यूनिवर्सिटी को आपको रिफंड करना हो तो हम इन्हीं पर्सनल डिटेल्स के जरिए करेंगे। तो अगर आप कुछ भी गलती यहाँ करेंगे अपनी बैंक डिटेल्स में तो आपका रिफंड भी अगर होगा तो नहीं हो पाएगा। क्लास 12 के मार्क्स भरते समय सावधानी जरूर रखें। अगर जहाँ थ्योरी के मार्क्स देने हैं वहाँ थ्योरी के मार्क्स डालिए, जहाँ प्रैक्टिकल के मार्क्स डालने हैं वहाँ प्रैक्टिकल के मार्क्स डालिए। ये ध्यान रखिए कि थ्योरी में मार्क्स ऑब्टेन में जो आपके मार्क्स मिले वो डालने हैं। मैक्सिमम मार्क्स है जिनमें आपका पेपर होता है, तो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स है। मान लीजिए आपके 70 मार्क्स आपको मिले हैं क्लास 12 में, तो मार्क्स ऑब्टेन में आप वो डालिए। इंश्योर करिए कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो वैलिड है, डेट में बने हुए जिस डेट में हमें चाहिए और उसी फॉर्मेट में है जो हमने अपने सीसस डॉक्यूमेंट में दिया है। ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपका एडमिशन बहुत सीमलेसली हो जाता है। अगर इनमें कुछ भी गलती होती है तो हम आपसे कहते हैं आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है और फिर तकलीफ होती है। तो अभी आपके पास टाइम है, देख लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट ठीक है, डेट ठीक डली हुई है। चेहरे दिखा दूंगा देखें इधर पे देखें वो लाइव वो देखें अगर बड़ा जने मंडल को अपलोड कर के रखा आज कब मुझे तो इस गलतफहमी में मत रहिए। किसी भी एडमिशन को हम अंडरटेकिंग या आपके एक्नॉलेजमेंट के आधार पर नहीं देंगे, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में जो नो अंडरटेकिंग्स एंड नो इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट्स विल बी अलाउड।
fill the form before the deadline and do not be in a haste. अभी हमने कोई डेडलाइन डिक्लेयर नहीं की है, अभी हम मैट खोला है कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास दिन बहुत सारे हैं इसलिए फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, देख लीजिए गलती ना हो।